वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम। आप सबको खुदा यीशु मसीह के नाम में पादरी नोबल सैमुअल का और तमाम कलीसिया का हेस्टिनेशन यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं खुदा उनकी सारी मेहरबानियों के लिए, खुदा उनके फजल और उसके तरस के लिए। आप जानते हैं कि हर फ्राइडे को शाम को हम फ्राहम होते हैं ताकि हम खुदा उनके पाक कलाम को सीख सकें। तो आइए हम अपने सर को झुकाएं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें, खुदा उनके पाक रूह की मामूरी चाहें। हम उन तमाम बहनों भाइयों को वेलकम कहते हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ शामिल हैं और खुदा उनके पाक कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं। हम उन सबको खुदा उनके नाम में वेलकम कहते हैं। तो आइए हम दुआ मांगें और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमें संभालता है, तू हमसे प्यार करता है। अरे प्यारे खुदावंद, तूने हमसे इस कदर मोहब्बत की कि तूने अपने इकलौते बेटे को भी दरेग ना किया। हम तेरे सुंदर कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, इसको सीखने के लिए, सुनने के लिए खुदावन हम इकट्ठे हुए हैं। खुदावन अपने चर्च के लिए, हेस्टिनेशन यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च के लिए और दीगर सारी कलीसिया के लिए, तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन हम सबके साथ होना, अपने पाक रूह से मामूर करना, तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए हम खुदावन की हम्द करें और हम ज़बूर 130 गाएंगे। आइए यहोवा दे लोग उस ते रखो ईमान, क्यों जो भारी निजात है बिच उस दे फरमान। Psalm 130।
کا شکر ادا کریں کہ جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو خداوند ہماری التجاؤں کو فریادوں کو سنتا قبول کرتا اور جواب دیتا ہے. ہم خداوند کا شکر کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم خداوند سے درخواست کریں گے خداوند ہماری غلطیوں کو گناہوں کو معاف فرمائے. ہم ان تمام باتوں کو خداوند کے تخت کے سامنے پیش کریں اور میں درخواست کریں ایلڈر عقیل صاحب سے کہ وہ دعا میں رہنمائی فرمائے. آئیے ہم دعا مانگیں. قدوس قدوس خداوند کا خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے. عالم بالا پر ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. عالم بالا پر ہوشانہ. تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، تیری تعریف کرتے ہیں اس موقع کے لیے کہ ابھی ہم مل بیٹھ کے تیری پرستش کر سکیں. اور اے خداوند ان روزوں کے ایام میں ہم تیرے دکھ اٹھانے کے تمام سلسلے کو یاد کر سکیں اور تیرے خون کو یاد کر سکیں جس کے وسیلہ سے ہم نے شفا پائی ہے. خداوند تیرا شکر اور تیری تعریف ہو یسوع ناصری. بخش دے کہ ہم اسی طرح ان دکھوں کے ایام میں تجھے یاد کرتے رہیں اور اپنے آپ کو پرہیزگار بنایا. خداوند صرف دکھوں کے ایام میں ہی نہیں بلکہ پورا سال پوری زندگی تیرے اے خداوند کلام کے مطابق گزاریں تاکہ لوگ جانیں کہ ہم ایک زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں. اور اے خداوند ہمارے عملوں سے ہماری باتوں سے ہمارے مسیح ہونے کی جھلک برسے. اے خداوند سب کچھ مانگتے تیرے زندہ جلالی اور مقدس نام سے، آمین. آئیے ہم خداوند کے پاک کلام کو تلاوت کریں. نہمیہ نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب، The book of Nehemiah chapter 1 verse 3 to 7. آئیے خداوند کا پاک کلام سنتے ہیں. پہلے ہم اس کو انگلش میں سنیں گے and I will request British Shazia Chand if you kindly read this text for us. Nehemiah chapter 1 verse 3 to 7. نہمیہ نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب 3 آیت سے لے کر 7 آیات تک. صفحہ نمبر 472 پر اردو کی بائبل میں ہے، پیج 472. The book of Nehemiah chapter 1 verse 3 to 7. آئیے خدا ان کا پاک کلام سنیں and I will request Shazia please read this text for us. This reading is taken from the book of Nehemiah chapter 1 verses 3 to 7. They told me that those who had survived and were back in the homeland were in great difficulty, and that the foreigners who lived nearby looked down on them. They also told me that the walls of Jerusalem were still broken, and that the gates had not been restored since the time they were burnt. When I heard all this, I sat down and wept. For several days I mourned and did not eat. I prayed to God, Lord God of heaven, you are great, and we stand in fear of you. You faithfully keep your covenant with those who love you and do what you command. Look at me, Lord, and hear my prayer as I pray day and night for your servants, the people of Israel. I confess that we, the people of Israel, have sinned. My ancestors and I have sinned. We have acted wickedly against you and have not done what you commanded. We have not kept the laws which you gave us through Moses, your servant. This is the word of God. Amen. Amen. Thank you, beta. God bless you. آئیے ہم وید کو سنتے ہیں. نہمیہ کا صحیفہ اس کا پہلا باب اس کی 3 آیت سے. خدا کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبے میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں.
जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की और कहा, आए खुदावन, आसमान के खुदा, खुदाए अजीम व मुहीब, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं, है तो इसराइल के लिए करता हूँ और बने इसराइल की बंदा मूसा को दिए नहीं माना। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर जिंदा कलाम के लिए और पाक की मांगनी चाहिए। खुदा मेहरबान पाक खुदा तेरा तो हमसे खुदावन अपने कलाम के गहरे भेद खुदावन तो हम पर खोलता है, मुनकशिफ करता है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं तेरे पाक रूह के लिए। और अभी जब खुदावन हम मिलकर तेरे कलाम पर ध्यान करते हैं तो फिर यीशु जी दुआ करते हैं कि तुम्हारे ख्यालों को मुंतशिर होने से बचा और बड़ी बरकत देना, यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। अजीजों, आज जैसा कि हम अपने उस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे जो हमने दुआ के सिलसिले में एक मजमून जो है शुरू किया, एक मसीही है उसकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। और उसमें हमने मुख्तलिफ बातों पर हमने पिछले जो अपनी बाइबल स्टडी थी फ्राइडे की उसमें हमने गौर किया। एंड आई एम सो ब्लेस्ड एंड सो हैप्पी कि जब बेटी शाजी ने मुझे वो जो काफी साल पहले के हमारे जो स्टडी के नोट्स थे वो उन्होंने मेरे साथ शेयर किए और इतने ब्यूटीफुली उन्होंने उनको लिखा हुआ था और मैं बहुत ही ज्यादा इस बात के लिए खुश हुआ। मैंने पहले भी आपसे बात शेयर की थी कि मैं जब दुबई में था वहां पे मैं मुनादी के लिए गया तो वहां पर एक लड़का शौकत जो मेरी कलीसिया का था तो उसने कन्वेंशन के बाद मुझसे मिला तो उसने मुझे कहा कि भाई साहब आपके जो सरमन्स के जो नोट्स हैं जब आप गुजरांवाला में थे तो उस वक्त के मेरे नोट्स अभी तक मेरी बाइबल में पड़े हुए हैं और उनको मैं जब मुनादी करता हूँ तो उनको इस्तेमाल करता हूँ। तो उसने वो कॉपी दिखाई, उसमें बड़े पेज जो है वो काफी खराब हो चुके थे, तो 20-22 साल हो गए तो उसने उनको संभाल के रखा हुआ था। तो कलाम और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि शाजिया by profession she is a teacher, आप उसको नोट कर लेते हैं तो वो बड़ी महफूज हो जाती है बिकॉज वी गॉट जरूरी है जो है वो लोगास है और ये जो रिटन वर्ड है ये रिमा जो है और ये जो हम बयान करते हैं आपसे, अगर ये रिटन फॉर्म में हमारे पास ना हो तो हम जो है इसको नहीं जो है वो बेहतर तौर पे नहीं जान पाएंगे। मेहरबानी करके भी जो फेसबुक पे मुझे फोन ना करें क्योंकि अगर आप जूम पे आना चाहते हैं तो जरूर आप आए, लेकिन प्लीज आप फोन ना कीजिए क्योंकि ये बाइबल स्टडी है, आप लाइव कॉल में नहीं ले पाऊंगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो जर्मनी से हमारी प्यारी बेटी मदिया जो कि बड़े रेगुलर हमारी व्यूअर्स हैं वो शायद सोच रहे हैं कि शायद लाइव कॉल में ले पाऊंगा, लेकिन आई एम सॉरी बेटा। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आज हम जब दुआ के बारे में बात करने को हैं तो मैं दावत दूंगा बेटी शाजिया को कि आप अपने जो व्यूज हैं जो आपने पिछले संडे जो सीखा और पहले के आपके माइंड में कुछ चीजें थी तो उस पर आप अगर कुछ रिफ्लेक्शन जो आप देना चाहो और कुछ उसमें शेयर करना चाहो regarding prayer, if there's something in your mind in view of all these notes, because I believe still you got these notes with you, or
I don't mind if you will share that appreciate it if you will share that in English as well. So over to you, Shaza Beta. Thank you. Yes, thank you, Padisab. To be honest, I had no idea that Padisab was going to ask me to do this, but I'm very happy to share with you. This is from Lent 2014, and we had a series of Bible studies on prayer and the different things prayers want. And that's just, I mean, my Bible is so used, the pages are falling apart and they are keeping together. But I read once as a child that a person whose Bible is falling together, their life is not falling together. Praise the Lord, hallelujah. So these are my notes about different types of prayer, what prayer requires, and it was just a recap of what we did last week. So it was lovely to see that prayer requires humbleness of self, fellowship with God. You are seeking and looking for God's revelation in your life. There is repentance, and you acknowledge your covenant with God. It's not an option, but it's our privilege to come into prayer because prayer is a type of worship. And through prayer, we are aiming to experience the will and the mercy of God. Our prayers need to be bold and persistent. We are asking our Heavenly Father, and we're coming before our Heavenly Father. And within those bold and persistent prayers, we can have a prayer of approach, of thanksgiving, of repentance, or of intercession. And while we are praying, we recognize God's holiness. We have an opportunity to praise Him. We have an opportunity for confession. And we demonstrate our trust in God. We don't pray to anyone else. We pray only to God. We don't worship idols or anything like that. We are only praying to God. So the culmination of all of this means that our prayer life is our privileged life, that we are in God's family and He has adopted us into His family and we come to Him boldly. Thank you very much, Beta. It's very good because I think it's good for our children because they can understand better in English. I try to be bilingual. मैं भी कोशिश करूँगा कि दोनों ज़बानों में जो है वो बात कर सकूँ. आज का जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कि दुआ के जो जुज़ हैं वो क्या हैं, कौन से अज्जा हैं, और ये जो एलिमेंट्स हैं प्रेयर के ये बड़े ही ज़रूरी हैं. और इसके लिए मैंने जो एक प्रेयर का पैटर्न जो है उसको जो चुना है, अभी हमने जो नमाया की जो किताब है उसको देखा, नेहमिया की, तो इसमें हमें एक बड़ी खूबसूरत दुआ का एक तरीकाकार या उसके अज्जा जो है वो नजर आते हैं. So before I will talk about the elements of the prayer, I would like to highlight the character of Nehemiah and the background of his life, where he was at that time and why he prayed to God, और क्या वजह थी उस वक्त क्यों उसने दुआ की. It was about 445 BC before Christ. 445 कबल मसीह की बात है कि जो बाबल का जो बादशाह था उसने शाह बाबल ने यहूदियों को असीर किया और असीर करके वो उनको बाबल में ले गया. अब जब ये कैप्टिविटी में थे, जब असीरी में थे, और उस वक्त यरूशलेम जो था उसके हालात के बारे में कुछ लोग जो है वहां पर आए और उन्होंने आकर तो नेहमिया को, जो कि बादशाह का साकी था, he was a basically cupbearer, और उसकी बड़ी रिस्पेक्ट थी. He was very close to that king and he was in that palace at that time. और जब उसको ये पता चला कि जो यरूशलेम के फाटक हैं वो जले हुए हैं और वहाँ के हालात उसके भाइयों ने आकर उसको बताए और बताया कि वो बहुत ही मुश्किल हालात हैं और जो उसकी बाउंड्रीज हैं, जो उसकी वॉल्स हैं वो गिर चुकी हैं, उसके फाटक जले हुए हैं. तकरीबन 700 साल 700 years they live in that captivity. और ये कोई छोटी सी बात नहीं थी कि वो अपने मुल्क से दूर थे और वो उस असीरी में थे, एक तरह की कैद में थे वो, और उनको टैक्स पे करना पड़ता था और अपनी मर्जी से वो रह नहीं पा रहे थे. ये एक बड़ी ही मुश्किल बात थी कि जब नेहमिया को ये बताया गया तो उसके सामने अपना स्टेटस भी था, अपनी हैसियत भी थी, बिकॉज ही वाज इन द पैलेस, और ये कोई छोटी सी बात नहीं थी यहूदियों के लिए. लेकिन he was such a humble person. When he heard about all these issues in Jerusalem, he started crying. वो रोने लगा.
because he was having the passion for his people, or he was having such love and pain for his people, और उस शहर के लिए, अपने लोगों के लिए, बिकॉज जो दीवार होती है, किसी भी जो फेंस होती है या बाउंड्री होती है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन. ये जो है ये एक मुहावजत का निशान होती है. अगर किसी के फाटक जले हों, फेंस टूटी हो, इट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन टुवर्ड्स द नेबर्स और द कम्युनिटी अराउंड देयर. हम जिस माहौल में रहते हैं, यहाँ पर हर घर की जो फेंस होती है, वो एक अच्छा निशान होती है कि भाई अपनी बाउंड्रीज में है, और उसको अगर फेंस टूटी हुई है तो अच्छा नहीं लगता. तो अब ये जो बनी इसराइल थे, जब ये यरूशलेम की उन टूटी दीवारों में रह रहे थे, जो लोग बाकी बच गए थे, और जब लोग वहां से गुजरते तो उनका मजाक उड़ाते थे कि ओ दीज आर द पीपल ऑफ गॉड, लुक एट देम, ये कैसे रह रहे हैं और इनके फाटक जले हुए हैं, दीवारें टूटी हुई हैं. सो दैट वाज अ वेरी ह्यूमिलेटिंग, दैट वाज वेरी बैड इंप्रेशन टुवर्ड्स द अदर नेशन, टुवर्ड्स द जेंटाइल्स, बिकॉज these people, they were saying that, oh, we are the people of God, and why we are living in that sort. कहा जाता है कि 160 साल से ये शहर जो है ये बर्बाद पड़ा था. 160 years they were having such experience of destruction of this city. तो आप देख सकते हैं कि इस दुआ के पीछे क्या वजह थी और क्या हालात थे कि नेहमिया ने ये दुआ की. He's one of my favorite character because he was a great reformer and he was a very brave and confident person. Not हाथ लेके चलता है, जो उनको मोटिवेट करता है, और सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि वो देखते हैं कि एक हाथ में तलवार लिए होते थे, बर्छी पकड़ी होती थी, और कमर के साथ तलवारें बांधी होती थी, और ईंटें उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं, खुदावंद का शहर तामीर कर रहे हैं. तो ये इस शख्स का किरदार था. अब इसकी जिंदगी में हम दुआ के हवाले से चंद एक एलिमेंट जो हैं उन पर हम गौर करेंगे, चंद एक अज्जा जो है उन पर हम गौर करेंगे. वो क्या अनासर हैं दुआ में, जिनके बारे में हमने पिछली दफा भी हमने सीखा. मैंने एक मेथड जो है वो आपके साथ डिस्कस किया कि हाउ वी नीड टू प्रे, और मैंने उसमें आपको बताया था कि जैसे बिशाजी ने उसको रिपीट भी किया है इंग्लिश में, के दुआ के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं जिसमें हम खुदावंद की तारीफ करते हैं और फिर अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, देन वी इंटरसीड फॉर द अदर पीपल. तो उसमें ये सारी बातें जो हैं वो पाई जाती है. एडोरेशन है, कन्फेशन है, सुप्लिकेशंस हैं, और दुआ जो है ये एक बड़ी खूबसूरत इबादत है. और जो लोग खुदावंद से दुआ नहीं करते वो खुदावंद से कुछ हासिल भी नहीं कर सकते. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू प्रे टू गॉड. और जो जब सुलेमान ने हैकल को बना लिया, और पहली तवारीख में हम देखते हैं कि जब उसने खुदावंद का घर बना लिया तो उसने खुदावंद से जब दुआ की तो खुदावंद ने कहा कि ठीक है, तूने मेरा घर बना लिया है, बट द कंडीशन इज, शर्त यह है कि तब मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाक सार बनकर दुआ करें, मेरे दीदार के तालिब हों, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनकी दुआओं का जवाब दूंगा और उनको उनके मुल्क में बहाल करूंगा. तो कंडीशन जो थी वो ये थी, ओके, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो प्लीज दैट यू हैव कंस्ट्रक्टेड माय प्लेस ऑफ वर्शिप, तूने मेरा घर बनाया है, लेकिन दुआ के लिए ये है कि यू हैव टू सबमिटिव, आपको हम्बल होना है, आपको अपने आप को सबमिट करना है, आपके अंदर सबमिटिव स्पिरिट होनी चाहिए, और ना सिर्फ ये बल्कि यू नीड टू सीक द फेस ऑफ गॉड. आपका जो फोकस है वो खुदा होना चाहिए. अब नेहमिया को हम देखते हैं. नेहमिया के नाम का मतलब ये है फेथ एंड ट्रस्ट, ईमान व भरोसा. ये उसके ईमान का नाम का मतलब, निमाया का मतलब है फेथ एंड ट्रस्ट. तो नेहमिया जो है, क्यों उसको ये नाम दिया गया? क्योंकि नाम का बड़ा आपकी जिंदगी बड़ा अहम होता है, हिस्सा होता है. तो नेहमिया जो है अपने नाम के हवाले से हम देखते हैं कि वो बादशाह पर रिलाई नहीं करता, बादशाह पर ट्रस्ट नहीं करता,
وہ یہ نہیں کرتا کہ اچھا ایک دم سے جب اس کے بھائیوں نے بتایا تو چلا جاتا بادشاہ کے پاس جا کر رونا پیٹنا شروع کر دیتا. نہیں, وہ کہتا کہ میں نے خداوند کے حضور بیٹھ کر رونے لگا. کہاں پر؟ جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی, which is very very important. یہ ہے کہ خداون کی we need to seek him. خداون کو دیکھیں, خداون پر دھیان دیں. خداون کی کھویا ہوا نہیں ہے, لیکن اس کو ڈھونڈنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ نہیں ہے, it is a gulf between you and God. In these days, with fasting and praying, you need to seek the face of God. تو وہ بیٹھ کر اس نے کنفیشن, آپ اس میں دیکھیں جو اپنے دعا کے حصے بتائے تھے. فرسٹ آف آل ہی adored our heavenly father. اس نے اس کی تمجید کی, اس کی ستائش کی. then he started crying. اب رونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بچے جو ہوتے ہیں وہ کسی چیز ان کو چاہیے ہوتی ہے تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ویپنگ ہے it's a kind of sign that you are relying upon someone. آپ نے آپ کو شکست خوردہ کرتے ہیں آپ, ہے نا. جب کوئی روتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر نو کیپیسٹی, اگر نو پاور, I'm powerless. تو رونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمت ہار گئے ہیں, آپ شکست خوردہ ہو گئے ہیں. تو یہ بیٹھ کر رونے لگا اور نہ وہ بادشاہ کے پاس گیا, نہ اس نے اپنے دوستوں کو بلایا, کچھ بھی نہیں کیا. لکھا ہے کئی دن تک ماتم کرتا رہا. اب we don't know how many days, but لکھا ہے کہ اس نے خدا کے حضور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی اور کہا آئے خداون آسمان کے خدا, خدا عظیم و مہیب, جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھتے اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں, عہد و فضل کو قائم رکھتا ہے. میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ تاکہ تو اپنے بندہ کی اس دعا کو سنے جو میں اب رات دن تیرے حضور تیرے بندوں بنی اسرائیل کے لیے کرتا ہوں, اور بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاف کی ہیں مان لیتا ہوں, اور میں اور میرے آبائی خان دونوں نے گناہ کیا ہے. فرسٹ we need to trust him. خدا پر بھروسہ رکھنا. ابراہیم کی زندگی سے بھی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس نے خدا پر بھروسہ کیا. خدا نے اس کو کہا کہ تو اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دے, اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے, اور میں تجھے برومند کروں گا, تجھے برکت دوں گا, تجھے ایک ایسے ملک میں لے کے جاؤں گا جہاں پر تجھے بہت زیادہ برکت دوں گا, اور تیری نسل جو ہے وہ آسمان کے ستاروں اور سمندر کی ریت کے برابر ہوگی. in the book of Genesis chapter 12 there was a covenant of God with Abraham. اور اس نے خداوند پر بھروسہ کیا, خداوند پر اس نے ٹرسٹ کیا, and he left that Ur. اس نے آج موجودہ جو عراق ہے وہاں پر وہ رہتا تھا, تو اس نے اپنے سب کو چھوڑ کر اپنے بھتیجے کو لیا. he took his nephew and wife and he left that city. خداوند پر بھروسہ کیا. اب یہاں پر نہمیہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گڑگڑاتا ہے, روتا ہے, روزہ رکھتا ہے, دعا کرتا ہے. then in prayer the second element is confession. خداوند کے حضور وہ اپنے اور اپنی قوم کے گناہوں کا اقرار کرتا ہے. اب میں دوپہر کوئی جب میری بات ہو رہی تھی بہت زیادہ چاند سے, we were talking about prayer, and the part of that prayer is forgiveness. اپنے لیے, دوسروں کے لیے انٹرسیڈ کرنا, ان کے لیے شفاعت کرنا. اور دیکھیں خدا مسیح نے جو لارڈس پریئر جو ہمیں سکھائی ہے, جس کو ہم دعائے ربانی کہتے ہیں, رب کی دعا, تو ربونی رب کی جو دعا ہے, جب ہم اس کو دیکھتے ہیں لارڈس پریئر کو, تو اس میں بھی خداوند ہمیں سکھاتا ہے کہ جیسے تو نے ہمارے قصوروں کو معاف کیا, ہمیں قصوروں کو معاف, ہمیں بھی ان کے قصوروں کو معاف کرنا سکھا جیسے تو نے ہمارے قصور معاف کیے ہیں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ. اب جو یہ اس میں یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دعا میں دوسروں کو معاف نہیں کرتے, دوسروں کے بہاف پہ ہم خداوند سے التجا نہیں کرتے, انٹرسیڈ نہیں کرتے. انٹرسیشن از اے ویری ویری امپورٹنٹ پارٹ آف پریئر. اور ہم نے اس کے بارے میں دیکھا تھا کہ سپلیکیشن جو ہے کہ آپ دوسروں کے لیے جو بیمار ہیں, جو دکھی ہیں, لاچار ہیں, ان کے لیے آپ دعا کرتے ہو. انجیل مقدس میں, مرکز کی انجیل میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو تھا جو کہ اپاہج تھا اور مفلوج تھا, وہ چل پھر نہیں سکتا تھا, اور کچھ لوگ جو ہیں اس مفلوج کو جو ہے وہ لے کر آئے.
in the Gospel of Mark chapter 2. वहां पर हम इस वाक्य को देख सकते हैं। मैं इस पूरे वाक्य को तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि वहां पर बहुत ज्यादा लोग थे, इट वाज वेरी क्राउडेड एंड दे वर नॉट एबल टू गो इनसाइड। तो उन्होंने क्या किया कि दे ओपन दैट रूफ, उन्होंने छत को खोला और छत उसको खोलने के बाद उन्होंने इसमें से उस मफलूज को उसको खुदा के सामने में ले आए। तो अगर आप 5वीं आयत को पढ़ें, मरकस का 2 बाब उसकी 5वीं आयत में, यीशु ने उनका ईमान देखकर उनसे कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। किसका ईमान देखकर? जो मफलूज था? नहीं, वो तो उसका ईमान नहीं देखा, वो जो लेकर आए थे। So sometimes we need to carry other people, we need to intercede on the behalf of other people. और वो जो उसको लेकर आए थे, यीशु ने उनका ईमान देखकर, तो वो शख्स तो बेचारा मफलूज था, लेकिन खुदावन ने जो लोग उसको लेकर आए थे उनका ईमान देखकर उससे कहा कि जा बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। तो दूसरों के लिए दुआ करना, और नेहमिया की जिंदगी में वो तो बड़ा खुशहाल था, वो तो बड़े खुशी के साथ अच्छी जगह रह रहा था, बादशाह का साकी था, बादशाह जो कुछ भी पीता पहले वो उसको चखता था और फिर बादशाह को देता था। तो ये कोई छोटी सी बात नहीं थी, इट वॉज अ ग्रेट ऑनर फॉर हिम। लेकिन उसने अपनी इज्जत को, अपने मर्तबे को, अपने मुकाम को उसने अहमियत नहीं दी, बट ही वॉज कैरिंग द लव एंड पैशन फॉर हिज पीपल, और उनके लिए वो इंटरसीड करता है। तो खुदावन, अगर हमने कहता कि मैंने बनी इसराइल की खताओं को जो हमने तेरे बरखिलाफ की मान लेता हूं, और मैं और मेरे आबाई खानदान दोनों ने गुनाह किया है, हमने तेरे खिलाफ बड़ी बदी की है, और उन हुक्म और आइन और फरमानों को जो तूने अपने बंदा मूसा को दिए नहीं माना। कन्फेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अब वो जो लोग जिन्होंने गुनाह किया, जिनकी वजह से यरूशलेम जो है बर्बाद हुआ, क्योंकि लोग जो थे वो बागियाना रवैया था उनका, और खुदावन ने उनको ये एक लेसन देना था, उनको सिखाना था, लेकिन खुदावन ने उनको वापस बहाल भी किया। और आज भी जो कबीले बिखर चुके थे, खुदावन उनको वापस ला रहा है, और वो यरूशलेम में जो है उनको वो लोग अपनी जो कॉलोनीज वहां बना रहे हैं। तो पहली बात है कि खुदावन पर भरोसा करना, दूसरी बात है अपने गुनाहों का इकरार करना, और तीसरा जो एलिमेंट है वो ये है कि वो इंटरसीड करना, सुप्लिकेशन, दूसरों के लिए खुदावन से दरख्वास्त करना, और खुदावन यकीनन हमारी दुआओं को सुनता, कबूल करता और जवाब देता है। हम खुदावन यीशु मसीह की जिंदगी में भी इस बात को देखते हैं। और अगर आप मुकद्दस यूहन्ना का अंजीली बयान और उसका 17 बाब देखें, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17, it's a beautiful prayer। खुदा यीशु मसीह ने जो दुआ की अपने दुख सहने से पहले, और ये जो दुआ है इसको हम देखते हैं, खुदावन ने यूहन्ना का अंजीली में 17 बाब, पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उसमें चंद आयात जो हैं वो मैं आपके लिए जरूर पढ़ना चाहूंगा। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, आए बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल ज़ाहिर कर, ताकि बेटा तेरा जलाल ज़ाहिर करे। चुनाचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया, ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सबको वो हमेशा की जिंदगी दे। और हमेशा की जिंदगी है कि तुझ खुदाए वाहद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो खुदा यीशु मसीह यहाँ पर जो है वो हमें दुआ करते हुए नजर आते हैं। और नामी आयत में खुदा कहता है, मैं उनके लिए दरख्वास्त करता हूँ, मैं दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं, और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, उनसे मेरा जलाल ज़ाहिर हो। और फिर 15वीं आयत में खुदा फिर दरख्वास्त करते हुए नजर आते हैं, मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि शरीर से उनकी हिफाजत कर। प्रे फॉर द प्रोटेक्शन, इब्लीस से उनको महफूज रख। और आगे हम इस बात को देखते हैं कि एक और जो परफेक्शन के लिए जो खुदा जो हमें दुआ करते हुए नजर आते हैं, वर्स 23, मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामल होकर एक हो जाए, और दुनिया जाने के तूने मुझे भेजा, और जिस तरह के तूने मुझसे मोहब्बत रखी उनसे भी मोहब्बत रखी। आए बाप, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हो, ताकि मेरे उस जलाल को देखे जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बनाया आलम से पेश से मुझसे मोहब्बत रखी। और खुदा ये कहते हैं कि देखो ये कितनी खुदा की मोहब्बत है, कि वो इस बात के लिए इंटरसीड कर रहा है कि खुदावन जहां पर मैं हूं, मैं चाहता हूं कि ये भी हो। और यूहन्ना का अंजीली बयान का 14 बाब, खुदावन ने कहा कि तुम
खुदा पर ईमान रखते मुझ पर भी ईमान रखो, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारी जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। तो उन्होंने कहा कि खुदा हम जानते तो कहाँ जाता है, फिर राह किस तरह जाने। खुदा ने कहा राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले बाप के पास नहीं आता। तो ये हम देखते हैं कि जो इंटरसीड करना है, सुप्लिकेशन जो है, वो नेहमिया की जिंदगी में भी हम देखते हैं, और फिर हम खुदा यीशु मसीह की जिंदगी में भी इस बात को देखते हैं। तो इसलिए खुदावन पर भरोसा रखना, खुदावन के चेहरे को देखना, उस पर निगाह करना, ये बहुत जरूरी बात है। और दूसरों के लिए हमें शफाया जो शफायती दुआ है वो भी करने की जरूरत है। हम किस तरीके से दुआ करते हैं, दिस इज अ चैलेंज। शायद हम रटी रटाई एक ट्रेडिशनल रूटीन की दुआ जो है वो करते हैं, इसको बकायदा जैसे देखें, अगर जब स्टडी दी जाती है, सरमन जो है उसको हम लेकर आते हैं आपके लिए, तो उसके लिए बकायदा जैसे आप खाना तैयार करते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि भी अच्छा उसमें कितनी मिर्चें डालनी है, नमक कितना डालना है, उसमें ऑयल कितना डालना है। तो उन इंग्रेडिएंट्स को जो भी कुकिंग करता है वो पहले उसको देखता है कि अच्छा जी मेरे पास ये सारी चीजें हैं, मेरे पास ऑनियन है, मेरे पास टमाटो है, मेरे पास ये सारी चीजें हैं, तो तब वो खाना जो है वो लजीज बनता है। इसी तरह जब बाइबल मुकद्दस को हम देखते हैं कि जब उसमें से हमने सरबत तैयार करना होता है, तो हम उससे जो रिलेटेड जो चीजें होती हैं, हिस्टोरिकल जो बाकी चीजें हैं, उन सबको देखकर एक खूबसूरत पैगाम जो है तैयार किया जाता है। इन द सेम वे व्हेन वी आर प्रेइंग टू गॉड, सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी इन योर माइंड, all these elements should be in your mind। ये नहीं कि अच्छा ठीक है जी चलो जी वो तो बचपन से हम एक द्वार बानी जो है उसको हम दोहराते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन that's not enough, ये काफी नहीं है। जब आप दुआ करते हैं, टेक इट वेरी सीरियसली, उसको डिजाइन करें, अपने पास लिखें कि मैंने किन किन बातों के लिए दुआ करनी है, और आप अपनी एक प्रे लिस्ट बनाएं कि अच्छा मैंने हम बहुत दफा ये कह देते, मैंने एक तो पहले भी इस बात को शेयर किया था कि कोई अगर किसी को कहता है जी मेरे लिए, अच्छा जी मैं करा मेरी दुआ, बट हार्डली पीपल आर प्रेइंग फॉर वन अनदर। इसलिए खुदाओं का कलाम कहता है कि तुम एक दूसरे के लिए बरकत चाहो, एक दूसरे के लिए दुआ करो, और ये बात भी याद रखें कि आपकी दुआएं जाया नहीं जाती। बहुत लोग कहते हैं जी मैं बड़ी देर से दुआ करूं पर मेरी दुआ सुनी नहीं जाती, पता नहीं खुदा किधर रह गया, और मुझे दुआ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं your prayer are very vital, these are very precious, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम मेरे साथ मुकाशोस का 5 बाब देखें तो उसमें हम दुआ के बारे में देखेंगे कि आपकी दुआएं जो हैं, I'm just trying to focus upon these verses because I want to encourage you कि आप दिल बर्दाश्ता ना हो, परेशान हो। I don't know whether you are praying for 1 week or from 1 month, कितनी देर से आप दुआ कर रहे हैं और आपकी दुआ का जवाब नहीं आ रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा सुनता नहीं है। खुदावन को डिक्टेट ना किया करें, ना उस पर अपना आप इम्पोज करें। खुदावन को मालूम है, वो तो कहता है कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं कि मेरे बच्चों की चीज की जरूरत है। देयर आर सम रीजन। और हमें ये भी बात जरूरी नहीं है कि आप खुदावन से आर्गुमेंट करें और वजूहात जानने की कोशिश करें, बल्कि खुदावन से दुर्खास्त करें, खुदावन इफ देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन माय लाइफ, if there is something wrong with my community, if there is anything wrong with my country, please forgive, खुदा माफ कीजिए। We don't know, हम नहीं जानते, खुदा तेरी राहें हमारी राहें नहीं, और ना तेरे ख्यालात हमारे ख्यालात हैं। तो आपकी जो दुआएं हैं वो बहुत ही प्रेशियस हैं, बहुत ही कीमती हैं। देखें खुदा के पाक कलाम को, मुकाशस का 5 बाब और उसकी 8 आयत में, जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार 24 बुजुर्ग उस बर्रे के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं, और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और इसकी मोहर खोलने के लायक है। और खुदावन जो है वो इस काबिल है कि वो जो है वो आपकी दुआओं का जवाब देता है, उसके उसके पास जो अथॉरिटी है। और ये जो आप देखिए कि प्याला जो है, जो बरबत उससे भरा हुआ है, और उस मुकद्दसों की दुआएं हैं, मुकद्दसों की दुआएं हैं। आपकी दुआएं जो है वो महफूज हैं, और खुदावंद जो है वो दुआओं का जवाब देता है।
अब अगर आप इस बात को देखें कि बहुत दफा जो लोग हैं वो जो मुकद्दसीन है वो भी ये बात करते हैं खुदा तो कब तक हमारा हिसाब न लेगा, और वो जो रूहें हैं जो कुर्बानगाह के नीचे हैं, एक नई जो स्टडी शुरू हो जाएगी यानी वो रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 9। और जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे, और बड़ी आवाज से चलाकर बोली कि आए मालिक, आए कदूस और मुबारक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। और उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया, उनसे कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो, जब तक कि तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। Another element in prayer is patience. सब्र से हम सब्र से दुआ करते रहें। Patience is very important. और अगर हम जल्दबाजी करेंगे, अगर सोचेंगे कि नहीं मैंने आज दुआ किया सुबह इसका जवाब मिल जाना चाहिए, तो ये एक कोई मेयार नहीं है। खुदावन जो है वो अपने ठहराए वक्त के मुताबिक जो है वो काम करता है। हमारा काम है कि सिर्फ हम खुदावन से दुर्खास्त करें, खुदावन से मिन्नत करें कि खुदावन तू हमारी दुर्खास्तों को सुन और कबूल कर। खुदावन जो है वो जरूर आपकी दुआओं का जवाब देगा। आप डिसअपॉइंट ना हो, परेशान ना हो। मुझे मालूम है कि हम बहुत दफा घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। देखें जो याकूब का खत है उसका 5 बाब हमने पिछले दिनों देखा था कि जो किसान है वो किस तरीके से इंतजार करता है और बीज बोता है, पानी देता है फसल के लिए, और फिर वो बारिश का इंतजार करता है और फिर वो कटाई का इंतजार करता है। वो ये नहीं कहता अच्छा मैंने बीज बोया है और जल्दी से जो है वो फसल हो जाए। और फिर यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं टाइमिंग के हवाले से। याकूब उसका 5 बाप और उसकी जेम्स चैप्टर 5 वर्स 17। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मीना बरसे, चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मीना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। 3.5 years, इट्स अ लॉन्ग टाइम। और फिर उसने दुआ की और आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। और बीमारों के लिए भी हमें दुआ करने की जरूरत है। और खुदा उनसे बस तुम आपस में एक दूसरे अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय द पावर ऑफ प्रेयर। खुदावन जो है वो दुआ के वसीले से बड़े बड़े काम करता है। तो ये वो एलिमेंट है जिनमें ट्रस्ट है, कन्फेशन है, सुप्लिकेशन है, पेशेंस है। ये तमाम दुआ के अज्जा हैं कि जब हम दुआ करते हैं तो हम इन अज्जा को, इन तमाम अनासर को अपने ज़हन में रखें कि क्या हम इस तरीके से हम्बल होके इनकिसारी के साथ, फरोतनी के साथ हम दुआ कर रहे हैं और क्या हम खुदा की मर्जी को पूरा होने देते हैं। क्यों देखें जो दुआएं बानी है उसमें भी खुदा कहते हैं कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है ऐसे जमीन पर भी हो। इसका मतलब यह है कि अभी तक जमीन पर खुदा की मर्जी पूरी नहीं हो रही। तो जब आप दुआ करते हैं तो खुदा से जरूर ये दरख्वास्त करें कि खुदा जमीन पर तेरी मर्जी जो है वो पूरी हो। और टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हो सकता है किसी बात के लिए आपको साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, गॉड नोस। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर सिचुएशन एंड योर सर्कमस्टांसेस। तो लेकिन खुदावन जरूर आपकी दुआओं का जवाब देता है। मैं सिर्फ एक आखिरी बात ये टाइमिंग के हवाले से कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में इस बात को देखा कि तकरीबन 3.5 साल के बाद खुदावन ने हमें औलाद जैसी नेमत दी व्हेन वी वर इन द सेमिनरी। तो हम रात दिन खुदावन से दुआ करते रहते थे। बहुत दफा हम थोड़े से परेशान भी हो गए, फ्रस्ट्रेटेड भी हो गए। और जिस महीने खुदा ने हमारी दुआ को सुना, मैं और मेरी मिसेज हम सोच रहे थे कि हम कोई बच्चा जो है उसको अडॉप्ट कर लें, क्योंकि एक ऐसा वाकया हुआ कि जब हम सेमिनरी में थे तो वहां पर इकट्ठे हम रहते थे उस हॉस्टल में। तो वो एक पूरा एक ऐसा एक घर थे जहां पर हम इकट्ठे सब वहां रहा करते थे। तो लुइजा जो है उस वाइवेरा का बड़ा ख्याल रखती थी। तो
किसी जो दूसरी स्टूडेंट थी उनको उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों को समझाया करें कि यहाँ पर ज्यादा गंद ना फैलाया कर, तो उसने औरत ने ताना दिया कि जी आपके तो बच्चे नहीं है इसलिए आप ये बात कर रहे हो। तो वो बड़ी दुखी हुई। तो हमने जाकर तो प्रिंसिपल साहब से कहा कि जी हम बेबी अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी बड़ी अपसेट है। तो उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें, डॉक्टर पादरी इकबाल निसार साहब ने, तो उन्होंने दुआ की और खुदा ने हम पर फजल किया। और हमारी शादी के 3.5 साल बाद खुदा ने हमें बेटा दिया। उसके बाद दूसरा बेटा जो हमारा खुदा ने उसको भी सेमिनरी में खुदा ने हमें 2 बेटे जो दिए। लेकिन को जानने की कोशिश करें, फ्रस्ट्रेटेड ना हो, परेशान ना हो। खुदा जो है वो अपने वक्त तक काम करता है। और इन अज्जा को, इन एलिमेंट्स को हमेशा अपने ज़हन में रखें, खुदा पे भरोसा रखें, खुदा उनके ज़रूर अपने गुनाहों का इकरार करें, अपनी गलतियों का इकरार करें, क्योंकि ज़बूर इस कहता है कि अगर बदी मेरे दिल में होगी तो खुदा कभी भी हमारी दुआ को ना सुनेगा। और पंजाबी में बड़ा खूबसूरत ज़बूर है कि बदी मेरे दिल च जे होवे ज़रा कदी भी ना मेरी सुनेगा खुदा। खुदा हमें सिखाता है, जो सर्मन ऑन द माउंट है, मुबारकबादियाँ हैं कि मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को इसलिए कल मैंने बताया भी था तो वहां पर मैं दोबारा इस बात को शेयर करना चाहता हूँ दुआ के वाले से। इसलिए तो वहां पर जो जब मैं अच्छा था तो काम नहीं कर रही थी, तो वो लेडी आई तो उसने मुझे कहा कि कैन आई हेल्प यू। मैंने कहा यस ऑफ कोर्स। मैंने कहा दिस मशीन इज नॉट वर्किंग। कोई बात नहीं, आप क्यों में जाए वहां पे टिल पे जमा करवा दें। तो मैंने क्लर्जी कॉलर लगाया था, क्रॉस पहनी हुई थी। तो मुझे कहती है कि आर यू प्रीस्ट। मैंने कहा यस आई एम। तो कहती है कि वुड यू प्लीज प्रे फॉर मी। मेरी जो मदर इन लॉ है उससे मेरे पे जादू किया हुआ है, तो आप के पास जादू का तोड़ा है। मैंने कहा जी हाँ मेरे पास है। तो मैंने कहा कि मैं तो दुआ कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी बाइबल ये सिखाती है कि तुम अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए बरकत चाहो। कहती हाउ कम। मैंने कहा बिल्कुल दिस इज माय बाइबल यू नो। तो ये तो मेरी बाइबल ने मुझे बताया है। मेरा खुदा मुझे कहता है कि तुम दूसरों के लिए दुआ करो। तो आई डोंट माइंड टू प्रे फॉर योर मदर इन लॉ कि खुदा उसको कल दे दानिश दे, और आपके लिए भी क्या आपके दिल में खुदा मोहब्बत भरे। तो देन शी टुक मी इन हर कैबिन, और वहां पर मैंने उसके लिए दुआ की। तो बात यह है कि हमारा खुदा जो है वो ये हमें सिखाता है कि जो तुम्हें सताते हैं, जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, आप उनके लिए दुआ करें, उनके लिए बरकत चाहें, लानत ना चाहें। जादू का ये नहीं है कि किसी ने जादू कर दे तो आप उसके लिए भी वो कहते, वो मुझे कहने लगी, कहते बिकॉज शी वाज मुस्लिम, तो कहने लगी जी मैं जाती मौलवी के पास तो उसने मुझे तवीज दे देने थे और कहते जी ये पिला दें अपनी सास को। कहती बहुत सारे लोग मेरे से पैसे भी ले लिए और उन्होंने मुझे मतलब गलत गाइड किया कि जी आप ये करें, ऐसे ऐसे ये विरद करें, ये इन आयात को पढ़ें आप कुरान की, तो आपकी जो सास है वो मर जाएगी। मैंने कहा जी मैं सास को मारना नहीं चाहता, तो आपकी सास जिंदा रहे, खुदा आपको बरकत दे, आपके हस्बैंड को बरकत दे। तो हमारा जो रवैया है वो मुख्तलिफ होना चाहिए। और यही गवाही है गैर कौमों में कि आप उनको बताएं कि खुदावन ने, यीशु ने सलीब पर भी दूसरों को माफ किया। एक पाकिस्तान में एक शख्स ने मुझसे कहा कि जी आप यहूदियों को क्यों प्यार करते हैं, आप इसराइल से क्यों प्यार करते हैं, उन्होंने तो आपको यीशु को मसलूब किया था। तो मैंने कहा कि मुझे ये बताएं कि अगर आपका कोई जो अगर आपके किसी अजीज को कत्ल कर देता है तो आप उसका खून बहा जो है वो ले लेते हैं, तो आप कोर्ट में जाकर कह देते हैं कि जी मैंने हमने आपस में समझौता कर लिया है, तो मैं केस को फर्दर परस्यू नहीं करना चाहता। तो मैंने कहा जज जो है वो माफ कर देता है और वो कहते हैं जिसने वो पेमेंट कर दी है तो चलें जी बात खत्म होगी। तो मैंने कहा जी जिसका नुकसान हुआ, जिसकी जान ली गई, वो स्लीप पर ये कहता है कि आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो मैंने कहा जी मुझे कोई राइट नहीं पहुंचता कि मैं यहूदियों को बुरा भला कहूं और उनसे बदला लूं, उनसे इंतकाम लूं। मैंने कहा वो जो सबसे प्यार करता है उस स्लीप पर भी अपनी मोहब्बत का इजहार किया। सो वी शुडंट हेट एनीवन। हमें किसी से नफरत नहीं करना है, बल्कि मोहब्बत करना है और दुआ में दूसरों के लिए बरकत चाहें, दूसरों के लिए इंटरसीड करें, उनके लिए शिफा के लिए, उनकी कुव्वत के लिए, ताकत के लिए आप दुआ करते रहें। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। हाँ जी, इस तरह नहीं अब यह है कि जी हमारी जो ज्यादा कलीसिया है वो फेसबुक पे है, और अब यहाँ पे डिस्कशन का जो है वो
मैं तो खास कर मीने हैं, बीनस बाजी हैं, साइमा हैं, और भी बहुत नौशी हैं, किरण थे भी, हाँ जी किरण भी हैं अभी हमारे साथ। तो मैं बहन भाई से दरख्वास्त करूंगा कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करें, बजाय फेसबुक पे आप अपने कंप्यूटर, अगर आप उस पे भी आते हैं तो मोबाइल पे भी आप जूम पे आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाइबल स्टडी लगा के या कंप्यूटर लगा के तो आप गोश्त भुनना शुरू कर दें। हड्डियां भी पक जाएगी, लेकिन आप ये पहले जो रूहानी खुराक है इसका ख्याल किया करें। तो या बच्चों के साथ आप बिजी हो जाएं तो पता नहीं, आपको पता भी नहीं होता कि क्या बात हो रही है। तो इंटरेक्शन जो है वो बड़ी जरूरी है, पर्सनल इंटरेक्शन जो है बड़ी जरूरी है। तो ये जो 1 घंटा होता है या 45 मिनट जो हम बाइबल स्टडी करते हैं, जिसमें प्लीज आप इसको सीरियस लिया करें। तो कोशिश करें कि आप जूम पे आएं और अपने खानदान के साथ बैठकर, अगर मैं आपके घर आया हूँ और आप मुझे कहीं पास, आप अपने कमरे में तो बैठे हैं सिटिंग रूम में, और आप बाइबल स्टडी दें, किसको दूं भाई? तो आप किचन में चले जाएं या कोई और काम करना शुरू कर दें, तो ये अच्छी बात तो नहीं। तो ये एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम आपके पास हैं, आपके लिए खुदा का पाक कलाम लेकर आए हैं। तो once again I'm really thankful to Elder Keel and Elder Sohail साहब, और ये बच्चे जो हमारे साथ अभी इब्राहिम जी और बेटी जो है हमारे साथ हैं, उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जो अभी जो आपको चेहरे नजर आ रहे हैं, शाजिया है, अकील साहब हैं और सुहेल, दे आर वेरी बिजी, दे आर वेरी कमिटेड, हाईली कमिटेड, अपने जो बिजनेस है, अपने जो काम है उनमें बहुत बिजी हैं। लेकिन आप देखते हैं कि रेगुलरली वो आपके पास आते हैं। मेरी बात, मैं तो खैर 24/7 आपका खादम हूँ। तो ये जो वॉलंटियरली लोग जो काम कर रहे हैं, तो अगर ये टाइम निकाल सकते हैं आपके लिए, तो आपको भी चाहिए कि आप इस बात को सीरियस लें और दूसरों को बताएं, खुद भी आएं और जूम पर आप आकर। तो मैंने इसलिए लिंक जो है वो शेयर कर दिया था। तो बजाय इसके कि आप घर में बैठ के, कुछ लोग हैं जिनको जूम का नहीं पता, चले उनको तो एक्सक्यूज किया जा सकता है, लेकिन जिनको मालूम है उनको चाहिए कि वो अपने बाइबल मुकद्दस को लेकर बैठे हैं, खुदा का पाक कलाम सीखें और इसके नोट्स लें। कोई क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करें, ताकि हम इकट्ठे मिलकर तो बाइबल स्टडी जो है उसको कर सकें। तो थैंक यू आपका। तो आइए हम दुआ करें, तो खुदा उनकी बरकत चाहें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें संभालता है। प्यारे खुदावंद, हमें ये सिखा कि हम तुझ पर भरोसा रखें, तुझ पर ईमान रखें, और प्यारे खुदावंद अपने गुनाहों का इकरार तेरे हुजूर कर सकें। फिर यीशु, जब हम तुझसे दुआ करते हैं, रोजा रखते हैं, तो प्यारे खुदावंद तू हमें अकल, दानिश और हिकमत की रूह दे। आज जलाल से बड़े खुदा, मैं इन तमाम साथियों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ जो अपना कीमती वक्त तुझे देते हैं। प्यारे खुदा, मैं आलमगीर कलीसिया के लिए दुआ करता हूँ खुदा, तो इनको दिलों को अपनी तरफ माइल कर, क्योंकि वक्त बुरा है खुदावन। इससे पहले कि कलाम का कहत पड़े, क्योंकि खुदावन ना रोटी का कहत होगा ना पानी का, बल्कि खुदावन के कलाम का। प्यारे यीशु, अभी हमें एक सिखाने वाला है, अभी तेरा पाक रूह इस दुनिया में मौजूद है। इससे पेशतर के वो उठा लिया जाए, कलीसिया उठा ली जाए। फिर खुदावन हमें ये तौफीक दे कि हम तेरे बंदा दाऊद की तरह ये कह सके कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदावन तो हमें बड़ी बरकत दे, इन बच्चों के साथ हो, इनके टीचर्स के साथ हो, तमाम डॉक्टर नर्सेज के साथ हो, सबको प्यारे खुदावन तो हिम्मत, ताकत से तनुसीता फरमा। और जलाल से बड़े खुदावन जितने भी अजीज हमसे दूर तेरे करीब हैं, प्यारे खुदावन हम दुआ करते हैं एल्डर सरफराज साहब के लिए, एल्डर ब्रीन के लिए जो कि पाकिस्तान गए हैं। खुदा उनकी हिफाजत निगहबानी करके घराने को बरकत दे। इसी तौर से दीगर सारी कलीसिया के अफराद के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, खुदा उन नौजवानों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा हम सबके साथ हो। और प्यारे यीशु, आने वाले दिनों में जब हम और ज्यादा तेरे कलाम पर गौर करते हैं,
उसके लिए तेरी बरकत चाहते। संडे की सारी इबादत को तेरे हाथों में देते हैं, क्वायर के लिए, साजो आवाज के लिए खुदा मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। एल्डर सुहेल साहब के लिए, एल्डर वकील साहब के लिए खुदा दुआ करता हूँ तो उनके साथ। इस तौर से मेरी शादिया के लिए जब बच्चों के लिए लेसन तैयार करते हैं खुदा तो उनके साथ हो। फिर ये सबको नाम बनाम छू और बड़ी बरकत दे। रात भर हमारी साथ होना, सुबह की रोशनी दिखाना, सुबह उठे हमारे होठों पर तेरी सताइश हो। इसी तौर से फिर यीशु में तेरे ज़ुरियात खुदा का शान के लिए कि जबकि अल-सब खुदा पाकिस्तान गए हैं तो उनके साथ और उनके घराने के साथ हो, जबकि खुदा अपने बच्चों से अपनी अहलिया से दूर हैं, खुदा उनकी हिफाजत निगहबानी कर। हम सबको नाम बनाम हमेशा अपनी पनाह में लिए रहे। यीशु के सुंदर नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हाँ जी, एक ज़बूर गाएंगे और खुदा उनकी तारीफ करते हैं। ये ज़बूर आप गाइएगा। आप पे ऊपरों हाथ बजा के मैनू रब बचावेगा। ये खुदा उनकी तारीफ का ज़बूर 18 नंबर 18। आप पे ऊपरों हाथ बजा के मैनू रब बचावेगा। फिर इसके बाद हम दुआ रबानी कहेंगे और आपसे इजाजत चाहेंगे। आप पे ऊपरों हाथ बजा के मैनू रब बचावेगा। Psalm 18।
आमीन। एक हमने सिलसिला शुरू किया कि हर रोज हम चाहते हैं कि किसी न किसी खानदान के साथ मिलकर हम फैमिली प्रेयर किया करें। तो अगर आप चाहते हैं कि हम अपने खानदान के साथ, आपके खानदान के साथ मिलकर हम दुआ करें, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड मिला। बेटी सामा ने इनिशिएटिव लिया, हम उनके खानदान के साथ दुआ कर पाए। और सबसे मुझे ज़्यादा खुशी थी कि सबसे पहले हमारे अपने घर से ये सिलसिला शुरू हुआ जब हमने घर में मूव हुए हैं। तो ज़रूर उसके हम दुआ रखेंगे घर में शुक्रगुजारी की। लेकिन जब पहले ये प्रेयर घर से हुई और सामा वाटर के साथ हमने दुआ की, उनका घराना कराची से उसमें शामिल हुआ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके खानदान के साथ शाम को जब भी आपके पास टाइम हो तो आप मुझे बताएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़रूर इन रोज़ों के दिनों में, जबकि हम लॉकडाउन की वजह से आपके घर पे नहीं आ पा रहे फिजिकली, लेकिन हम जूम पर, फेसबुक पर आपके साथ मिलकर दुआ करें, आपके घराने के लिए बरकत चाहें। So whenever it is convenient to you, you can come back to me and just confirm when it's possible for you that we can pray together with your family. तो जरूर मुझे बताइएगा। कल सुबह प्रेयर ब्रेकफास्ट नहीं होगा, लेकिन उसकी जो उसका अल्टरनेटिव ये है कि हर सैटरडे को आपको पता है कि भाई गिलबर्ट डे है, तो 11 बजे वो खुदा का पाक कलाम पेश करेंगे। तो आप अपना ब्रेकफास्ट करके फारिग होके तो आप जरूर उस बाइबल स्टडी में शामिल हों। कल 11 बजे जूम पर भी और फेसबुक पर बाइबल टीवी ग्लोबल पर ये प्रोग्राम जो है पेश किया जाएगा, तो आप जरूर उसमें शामिल हो। संडे को 10:30 बजे हम इबादत करेंगे इंग्लिश में और उसके बाद 2 बजे उर्दू हिंदी में। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम सब मिलकर दुआ रबानी कहते हैं। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज बख्श दे, जिस अपने कर्जा को माफ करते हैं तो कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, उनके बादशाह कुदरत का जलाल हमेशा तक तेरे है। आमीन। खुदावन अपना चेहरा पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा इस मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त को शाक़त आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुक़द्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। थैंक यू जी, गुड नाइट। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदावन आपके साथ हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।